हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. Introduction of token currency was the second unprecedented project launched by Mohammed bin Tughlaq. It is essentially a modern concept that does not need elaboration. We live in the age of token currency, where the mere contemplation of an intrinsic value of the contents of paper notes and coins be dubbed idiotic. Muhammad bin Tughlaq, on the other hand, earned the nickname of a fool because he conceived of such an advanced measure to revolutionize in Indian economy in the 14th century. He has been described by Edward Thomas as Prince of Moneyers. Soon after accession, he made sweeping reforms in system of coinage. He fixed the relative values of precious metals and issued various types of coins with the object of facilitating exchange and circulation. The introduction of token currency, however, his most significant innovation in the history of medieval Indian coinage, following the example of Kublai Khan of China and Gai Khatu of Persia. Muhammad bin Tughlaq issued orders that tankas of bronze be minted and used for at par with the silver tankas. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन करेंसी के सिस्टम को शुरू किया. ये हमारे लिए जानने की बहुत डिफरेंट बात नहीं है, क्योंकि आज भी जो है अब हम लोग टोकन करेंसी ही यूज़ करते हैं. जो पेपर नोट होता है, सपोज 500 का जो नोट है, उसमें क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 500 रुपीज़. क्या उस नोट को अगर हम लोग ऐसे ही उसकी वैल्यू देखें तो क्या वो नोट 500 के बराबर है? नहीं है. पर क्या होता है कि वो नोट जो है वो 500 की वैल्यू को खुद में स्टोर कर रहा है, और कोई अथॉरिटी है जिसने हमको प्रॉमिस किया है कि जैसे कि इंडिया के केस में आरबीआई हमको प्रॉमिस कर रही है कि जो ये जो नोट है ये आपको 500 के चीज़ों को की वैल्यू जो है वो 500 चीज़ों की वैल्यू 500 रुपये की जो वैल्यू होती है वो आपको इस नोट से मिल जाएगी. अगर हम लोग उस नोट को किसी और को देते हैं तो वो भी इसलिए लेता है क्योंकि उसमें आरबीआई ने लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़. तो वैसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक ने उस ज़माने में 14th सेंचुरी में शुरू किया और उनको लोगों ने मूर्ख कह दिया, क्योंकि उन ज़मानों में जो है वो अगर आपको कुछ 500 का चाहिए या फिर वैल्यू का चाहिए तो आप इक्वल वैल्यू के आप जो है ना असेट देते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हैवी एक्सचेंजेस के लिए गोल्ड या सिल्वर, और कम के लिए जो है बाकी चीज़ें. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा, कुबलाई खान ऑफ चाइना ने पहले ये किया था और गै खातू जो पर्शिया के थे उन्होंने भी ये किया है टोकन करेंसी. तो इनको देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या कहा कि अब से ब्रॉन्ज का जो टंका होगा, ब्रॉन्ज का जो सिक्का होगा वो सिल्वर के सिक्के के बराबर वैल्यू होगी. Various reasons have been forwarded by different writers, contemporary as well as modern, for the novel experiment of Muhammad bin Tughlaq. Underlying theme of Barney's account is that the financial stringency of the state had compelled the Sultan to take this step. There may be some truth in it, but Barney's statement that on account of failure of his taxation policy in Doab and subsequent famine in northern India, the state treasury was emptied is wrong. In reality, the Doab episode had been taken place after the failure of the experiment in the token currency. The fact that Sultan had subsequently paid back to public gold and silver coins in return for the token currency and managed a most difficult situation and astonishing success lead us to the conclusion that financial difficulty was not the reason for the introduction of currency. On the other hand, failure of the experiment must have resulted in financial bankruptcy of the state. Though Muhammad bin Tughlaq had inherited a well-filled treasury from his father, he was always anxious to find out new ways and means of improving the financial conditions of the state.
Firishta rightly tells us that Sultan introduced token currency because he wished to augment his resources in order to carry it into effect his wild plans of conquest and administrative reforms, which appealed so powerfully to his ambitious nature. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बर्नी जो है वो कहते हैं कि दोआब में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स लगा दिया था और उसी साल जो है दोआब में सूखा पड़ गया था। तो क्या हो गया था कि टैक्स जो उन्होंने बढ़ाया तो लोगों ने रिजेंट कर दिया और इससे जो है वो फाइनेंशियल ट्रेजरी या स्टेट ट्रेजरी को प्रॉब्लम हो गई और फिर जो है क्या हो गया कि उनको जो है ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। पर ये बात गलत है क्योंकि टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330-32 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि दोआब वाला ये जो घटना हुई दोआब वाली कि गंगा यमुना दोआब में क्या हो गया था, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और उसी समय सूखा पड़ गया था तो लोग जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। बट ये इंसिडेंट जो है ये टोकन करेंसी लॉन्च होने के बाद हुई है 1335-36 में। और एक और बात है कि जब लोगों ने जो है गड़बड़ करने लगे टोकन करेंसी तो फिर जब लोग जो है वो गड़बड़ करने लगे, मिंट करने लगे, तो फिर क्या हो गया, टोकन करेंसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टेट के गोल्ड और सिल्वर से एक्सचेंज किया, है ना। क्या हो गया एक्चुअली, स्टेट ने ही टोकन करेंसी को रेगुलेट किया था ना, तो स्टेट का क्या कहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, तो अब वो बियरर को उस उतने 500 सपोज 500 के बराबर उसको वैल्यू देना है, तो वो गोल्ड और सिल्वर में मोहम्मद बिन तुगलक ने रिटर्न किया। और अगर उनको सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते तो क्या वो सारे लोगों को टोकन करेंसी के बदले गोल्ड और सिल्वर दे पाते? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो है टोकन करेंसी वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये कहीं से भी फाइनेंशियल बैंकरप्सी के कारण नहीं लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने अपने पिता से जो है एक अच्छा खासा भरा हुआ जो है ट्रेजरी भी उनको जो है विरासत में मिली, ठीक है। फिरिश्ता कहते हैं कि सुल्तान जो है करेंसी जो है वो उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो है कैसे वो हमेशा ना नए नए तरीके ढूंढते रहते थे कि फाइनेंशियल कंडीशन को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें एक वाइल्ड प्लान जो उनका था कि कॉन्क्वेस्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना है, और उनका जो एम्बिशियस नेचर था तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हो इनके पास, और बस अपने रिसोर्सेस को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने जो है टोकन करेंसी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ईश्वर टोपा was probably the first among the modern historiographers to infer that the shortage of silver was most important reason for this measure. सबसे पहले ये बोलने वाले की कमी हो गई फाइनेंशियल ड्रेन की वजह से ये जो शुरू हुआ टोकन करेंसी, सबसे पहले इंसान जिन्होंने ये कहा है वो ईश्वर टोपा है। ईश्वर टोप जो है वो जो है उन्होंने कहा कि चांदी के सिक्कों की कमी की वजह से या चांदी की कमी की वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। मेडाइवल इंडिया में सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था सिक्के बनाने के लिए, क्योंकि सोने के सिक्के इतने कॉमन नहीं थे। इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द वास्ट डायमेंशंस ऑफ द तुगलक एम्पायर इंक्रीज द डिमांड फॉर सिल्वर। आई एम सो सॉरी। तो ट्रेड और कॉमर्स के बढ़ने से क्या हो गया, और तुगलक जो एम्पायर थी वो काफ़ी फैली हुई थी, तो उस वजह से क्या हो गया, सिल्वर का भी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया, है ना, क्योंकि अब एम्पायर बड़ी हो गई। और इतना ज़्यादा सिल्वर कॉइन जो है मतलब बांटना इंपीरियल आर्मी को, सिविल सर्वेंट्स को, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वैसा ही प्रॉब्लम जो अलाउद्दीन खलजी ने एक समय फेस किया था। तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया था, उन्होंने सैलरी कम कर दी थी और प्राइजेस कमोडिटी के कंट्रोल में लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो नहीं चाहते थे कि जैसे लोग अलाउद्दीन खलजी के समय डरे हुए थे, वही डर वापस से वो नहीं पैदा करना चाहते थे, बस इसीलिए। बट उनको भी जो है सिल्वर की स्कार्सिटी तो वो भी फेस कर रहे थे, तो उन्होंने जो है 3 अलग अलग मेथड सिल्वर की कमी से उभरने के लिए 3 अलग अलग मेथड निकाले, तरीके निकाले। पहला कि प्राइस ऑफ सिल्वर इन रिलेशन टू गोल्ड उन्होंने बढ़ा दिया। अब किसी चीज़ का, जब हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड होता है, तो जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू उसके कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों के जो साथ में है उनकी चीज़ें, तो क्या हो जाता है कि दूसरे चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है।
तो क्या हो जाएगा, और पहले वाली चीज़ की डिमांड घट जाती है। इसको हम लोग अगर सिंपली समझें तो फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है सपोज वेजिटेबल बनाना है एंड वी हैव टू थिंग्स, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, और कॉलीफ्लावर जो है वो लोग बहुत ख़रीद रहे हैं और कॉलीफ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और कैबेज कम ख़रीद रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कैबेज लोग ज़्यादा ख़रीदें तो हम क्या करेंगे, कॉलीफ्लावर के कॉस्ट को कैबेज के कॉस्ट में बढ़ा देंगे, कि कंपैरिजन में बढ़ा देंगे। अब कॉलीफ्लावर क्योंकि महंगा हो गया और कंपैरेटिवली कैबेज सस्ता हो गया, तो लोग जो है वो कैबेज ख़रीदने लगेंगे और कैबेज का डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर मतलब अगर उल्टे दूसरे तरीके से समझे तो कॉलीफ्लावर का डिमांड जो है वो घट जाएगा। ठीक इसी तरह से जब प्राइस सिल्वर का बढ़ा दिया गया तो सिल्वर का डिमांड घट गया गोल्ड के कंपैरिजन में। रिलेटिव वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज रिड्यूस्ड टू द रेशियो ऑफ 7:1 इंस्टेड ऑफ 10:1 विच जनरली प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ प्रेडिसेसर्स। इनसे पहले जो है गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो होता था वैल्यू का, तो वो क्या था, उसको जो है 10:1, मतलब गोल्ड जो है वो अगर 10 सिल्वर कॉइन्स, आप ऐसे समझो कि 10 सिल्वर के सिक्के दोगे तो आपको 1 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। और वो घट करके अब क्या हो गया कि आप जो है इफ़ आई एम राइट, रिलेटिव वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वॉज रिड्यूस टू द रेशियो ऑफ 7:1, हाँ, इंस्टेड ऑफ 10:1 विच जनरली प्रिवेल्ड। तो अभी जो है वो 7 सिक्कों में ही हो जाएगा काम, जो कि पुराने टाइम में क्या था, 10:1 था, मतलब 10 सिक्कों की नीड पड़ती। सेकेंड, ही इंक्रीज द वेट ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड रिड्यूस दैट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर कॉइन्स का वेट भी घटा दिया और गोल्ड कॉइन्स का वेट बढ़ा दिया। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सिल्वर की स्कार्सिटी है। अंडर अलाउद्दीन खलजी, गोल्ड एंड सिल्वर टंकास वेटेड 175 ग्रेन्स ईच। अलाउद्दीन खलजी के समय में सोने और चांदी के सिक्के जो हैं 175 ग्रेन के हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में गोल्ड जो है वो 200 ग्रेन का हो गया, और सिल्वर जो है, गोल्ड को क्या कह रहे हैं, दिनार, और सिल्वर के सिक्के को कह रहे हैं अदाली। तो ये जो है ये 144 ग्रेन का ही रहा। इससे सीधा पता चल रहा है कि एज कम्पेयर्ड विद गोल्ड देयर वर रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ सिल्वर इन द कंट्री अंडर मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन। इससे हमको पता चलता है कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर की जो है कमी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये 2 मेजर हुए। तीसरा मेजर क्या था कि सिल्वर के शॉर्टेज को कैसे कंपेंसेट करें, तो एक टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वैल्यू सिल्वर के वैल्यू के बराबर होगी। Above all, Muhammad bin Tughlaq possessed originality of thought and loved experimentation. He wanted to open a new chapter in the history of coinage in India. He was fully aware of the success of token currency in China and decided to try the experiment without the slightest intention of defrauding or cheating of his own subject alleged by his contemporary writer. तो ये जो है इंडियन कॉइनेज में एक नया सिस्टम शुरू करना चाह रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्होंने पहले ही जाना हुआ था कि कुबलाई खान ने जो है सेम काम, कुबलाई खान जो है वो मंगोल एम्पायर थे चाइना के, तो उन्होंने सेम काम किया हुआ था और चाइना में बड़ा सक्सेसफुल हुआ ये एक्सपेरिमेंट। तो उनको लगा इंडिया में भी सक्सेसफुल होगा। उन्होंने सोचा ही नहीं कि लोग जो है वो फ्रॉडिज़म भी कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मेड ब्रॉन्ज कॉइन एज लीगल टेंडर इन 1330। लीगल टेंडर क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट सैंक्शन हो जाए। जैसे आज इंडिया में रुपए जो है वो लीगल टेंडर है ना, उसको आरबीआई का सैंक्शन है। वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो ब्रॉन्ज के सिक्कों को क्या कह दिया कि ये लीगल टेंडर है, तांबे के सिक्के। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टोकन करेंसी वॉज सेम एज दैट ऑफ मॉडर्न पेपर एंड मेटालिक। अभी जैसा मॉडर्न पेपर या मेटालिक करेंसी का जो फंडामेंटल पेपर एक पेपर का टुकड़ा है और आपको कह रहा है कि आपको 1000 रुपये की चीज़ आप इससे ले सकते हो, और जिसके पास भी ये पेपर का टुकड़ा होगा वो फाइनली जो है वो सम ऑफ 1000 रुपये जो है अगर उसको कोई नहीं देता तो उसको आरबीआई दे देगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ था कि अगर जो है टोकन सिक्कों को आप चलाओ, सिल्वर के सिक्के के बराबर वैल्यू होंगे, और अगर फाइनली कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो गवर्नमेंट उसके बराबर आपको जो है सिल्वर दे देगी, ऐसा कुछ। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन वॉज इनसिग्निफिकेंट बट वॉज इशूड ऑन गवर्नमेंट क्रेडिट। वैसे ही तांबे के सिक्के की वैल्यू तो इनसिग्निफिकेंट थी बट गवर्नमेंट की क्रेडिट थी इसमें। स्कीम जो है एक होल क्वाइट गुड एंड स्टेट्समैन लाइक था, बट एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो गया, है ना। और एग्जीक्यूशन के गड़बड़ होने की वजह से सुल्तान के बेस्ट इंटेंशंस जो हैं वो सारे के सारे पानी में फिर गए।
Unfortunately, Muhammad bin Tughlaq did not take steps to make the mint the monopoly of the state, nor there was any elaborate machinery to prepare standard coins. Any goldsmith could produce as good a coin as the royal token. तो क्या हो गया, इन्होंने जो है मिंटिंग कॉइन को जो बना रहे हैं वो स्टेट के मतलब एकाधिकार उसको नहीं बना पाए, है ना, कि बस स्टेट ही प्रिंट करे या कुछ डिफरेंट स्टेट प्रिंट करे। कोई भी गोल्ड स्मिथ जो है वो उतना ही अच्छा मिंट कर दे रहा था कॉइन, उतना ही अच्छा सिक्का बना दे रहा था जितना कि रॉयल स्टेट बना रही थी। एडवर्ड थॉमस कहते हैं, There was no special machinery to mark the difference of fabric of royal mint and the handiwork of moderately skilled artisan. Unlike the precaution taken to prevent the imitation of the Chinese paper notes, there was positively no check on the authenticity of copper tokens, and no limit to the power of production by the masses at large. तो लोग भी बना पा रहे हैं ईजिली, है ना। इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम कि चाइना में तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने जो पेपर करेंसी प्रिंट किया चाइना में कुबलाई खान के टाइम पर, तो उन्होंने प्रॉपर देखा कि ऑथेंटिसिटी हो, रॉयल गवर्नमेंट ही प्रिंट कर पा रही थी, यहाँ पर हर कोई प्रिंट कर पा रहे थे। बर्नी डज नॉट एग्जैगरेट द पॉइंट व्हेन ही सेज दैट हाउस ऑफ एवरी हिंदू वॉज टर्न्ड इनटू अ मिंट and people including Muslims of course began to forge the coin on an extensive scale. They turned their utensils into coin, and with these they paid their tribute, and with these they purchased horses, arms and fine things of all kinds. The rayas, the village headmen, the landowners grew rich and strong upon these copper coins, but the state was impoverished. Every goldsmith struck copper coins in his workshop and the treasury was filled with copper coins. तो क्या हो गया कि बर्नी कहते हैं, बर्नी बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे जब वो कह रहे कि हर हिंदू घराना जो है एक कॉइन मिंट करने वाला घर बन गया था और हर मुस्लिम जो है वो फ्रॉडिज्म कर रहा था। हर कोई अमीर हो रहे थे, राय हो जाए, लैंड ओनर्स, विलेज हेडमैन, सब वो अमीर हो रहे थे। लोग जो है वो अपने बर्तन से कॉइन बना बना के टैक्स पे कर रहे थे, हॉर्स खरीद रहे थे, आर्म्स खरीद रहे थे। ऐसे सिचुएशन हो गए। और फिर उसके बाद जो है स्टेट जो है वो गरीब बनता गया, राय, विलेज हेडमैन, लैंड ओनर ये अमीर बनते चले गए। हर गोल्डस्मिथ जो है वो कॉपर कॉइन को आराम से अपने वर्कशॉप में प्रोड्यूस कर पा रहा था और ट्रेजरी जो है स्टेट की जो है वो ऐसे कॉपर कॉइन से भरती चली गई। Foreign merchants purchased Indian goods with these token currency in vogue but refused to accept the latter while selling their goods. Foreign merchants भी ये टोकन करेंसी से इंडियन चीज़ों को खरीदने लगे, पर जब उनको उनके चीज़ के बदले टोकन करेंसी दिया गया वो नहीं एक्सेप्ट करने लगे और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डिसकंटेंट पूरी कंट्री में फैल गया। लोग जो हैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन अपने पास रखने लगे और सेम समय में क्या कर रहे थे, टोकन कॉइन को दूसरे को देना चाहते थे। ठीक है, टोकन कॉइन जो है उसकी पत्थर वाली वैल्यू हो गई थी, रोड के पत्थर वाली वैल्यू टोकन कॉइन की हो गई थी। हर कोई बना दे रहा था, सबको पता था कि फ्रॉडिज्म चल रहा है, गवर्नमेंट का है नहीं है, इतना कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन। बर्नी कहते हैं कि द कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ ग्रेट स्कार्सिटी रोज 4-fold and 5-fold इन वैल्यू। और इससे क्या हो गया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो लोगों के बीच में अब है ही नहीं सर्कुलेशन में, लोग सारे एक दूसरे को ये सब बना करके दे रहे हैं इस वजह से, और स्टेट के पास भी स्कार्सिटी हो गई क्योंकि सब टैक्स जो है वो जो है वो टोकन करेंसी में पे कर रहे हैं। इससे क्या हो गया कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ गई। अब कोई चीज़ अगर स्कार्स होता है तो उसकी वैल्यू होती है ना, जो चीज़ कम है उसकी वैल्यू है, जो फ्री में हवा पे कहाँ कोई टैक्स लग रहा है ना। वी आर नॉट गिविंग एनी टैक्स फॉर एयर वी आर ब्रीदिंग, जबकि एयर कितना इम्पॉर्टेंट है, पर वी आर गिविंग टैक्स फॉर अदर थिंग्स। लाइक मतलब किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाने का हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट एयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ हम उसके लिए टैक्स नहीं पे कर रहे, क्योंकि एयर जो है वो स्कार्स नहीं है, बट फैंसी रेस्टोरेंट्स गिने चुने खुले हुए हैं, है ना। ज़्यादा भी हैं, अगर ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट्स भी ओपन है तो वो एक्चुअली में सर्विस जो है वो एक चार्ज लेकर दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी वो लिमिटेड है ना। जितने ईजिली एयर अवेलेबल है और ऑल अराउंड द अर्थ उतने ईजिली तो अवेलेबल नहीं है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ट्रेड जो है वो बर्बाद हो गया हर तरफ से, और मनी ट्रांजैक्शन जो है वो ठप हो गया, बंद था।
Never was so wise a measure of reform so cruelly frustrated than this experiment in token currency. The Sultan was compelled to order for the withdrawal of token currency after it had been in use for about 2 years. He recalled all the token coins, exchanging each for silver one. The people got gold and silver in exchange for such coins, whether genuine or forged. तो क्या हो गया कि सुल्तान ये जो है ये इतना अच्छा मेज़र था, इतना जो है ये अच्छा डिसीज़न था और इतने गंदी तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ कि एंड में सुल्तान जो है मजबूरन उनको 2 साल के बाद क्या करना पड़ा, टोकन कॉइन को ख़त्म करना पड़ा यूज़ से। और हर टोकन कॉइन के बदले जो है लोगों को गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिला, भले ही वो स्टेट का हो या फिर लोगों ने फ्रॉजरी की हो। So many of these copper tankas were brought to the treasury that the heaps of them rose up in Tughlaqabad like mountain. Great sums went out of the treasury in exchange for copper and great deficiency was caused. तो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कॉज हुआ, पहले नहीं था। क्या होता है, इतना ज़्यादा कॉपर टंका आ गया कि तुगलकाबाद में तो एक पहाड़ बन गया कॉपर टंका का, है ना। सुल्तान जो है ये प्रोजेक्ट सुल्तान का फेल हुआ, साथ साथ एम्पायर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, रॉयल ट्रेजरी को लॉस हुआ। और फिर अब जो है सुल्तान को अपने सुल्तान अपनी प्रजा के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा सोचकर वो कुछ लाए और उनकी प्रजा ने उनका साथ नहीं दिया। इससे पहले ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल में प्रजा सुल्तान के अगेंस्ट हो गई थी। अब आगे पढ़ते हैं। Thus, the discredited token currency have been recalled, all forgery was stopped, and credit of the government restored. The storm blew over, panic ended, and people grew rich at the cost of the state, so much so that not even a murmur about the affair was heard by Ibn Battuta, who came to India shortly afterwards. क्या हो गया कि राज्य के कॉस्ट पे लोग अमीर हो गए, है ना, राज्य को गरीब कर दिया और खुद अमीर हो गए। इतने ज़्यादा लोग खुश हो गए, इतना जल्दी पैनिक ख़त्म हो गया क्योंकि लोग तो अमीर बन गए, तो इतना जल्दी पैनिक ख़त्म हो गया कि इसके जस्ट बाद इब्न बतूता आए और उनको हल्की सी भनक भी नहीं लगी इस बात की। अब्बास जो कि मसालिक उल अबसर के ऑथर हैं, उन्होंने जो है उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अबव मेंशन स्टेटमेंट जो है बर्नी का नीड्स अ कमेंट. It contradicts his earlier observation that Muhammad bin Tughlaq had adopted token currency in order to refill his empty treasury. अब बर्नी ने पहले तो कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन करेंसी को अपने ट्रेजरी को भरने के लिए लगाया, बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बर्नी खुद ही कहते हैं कि जो लोग जो हैं वो बिल्कुल खुश हो गए, लोग जो हैं वो बिल्कुल खुश थे और कोई भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा था, लोग अमीर हो गए स्टेट के कॉस्ट पे। तो जब रॉयल ट्रेजरी खाली थी तो लोग अमीर कैसे हुए, है ना, ये पूछा जा रहा है। Had that been the case, he could not have afforded to buy back token coins, including million of forged ones, in the exchange of gold and silver. वही जो मैंने बोला। As a matter of fact, Sultan displayed a rare type of patience, courage, and sportsmanship spirit in winding up the project, which had failed not only because of bad execution of state but also because of dishonesty of his people. In fact, हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे सिचुएशन में बहुत ही पेशेंस और करेज दिखाया प्रोजेक्ट को ख़त्म करके, जो बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट था। स्टेट का थोड़ा बैड एग्जीक्यूशन हुआ और लोगों की गद्दारी की वजह से बर्बाद हो गया। उनको बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनके वाइजली कंसीव्ड प्रोजेक्ट को इतने गलत तरीके से जो है कुछ ओमिशन और कमीशन के एक्ट की वजह से, उनके प्रजा की वजह से जो है ये ख़त्म हुआ। Whole episode is a sad commentary on the incompetence of the ruler and irresponsible conduct of his subject. Both the parties were equally to blame. ये पूरा जो है ये बताता है कि रूलर जो है ये इनकॉम्पिटेंट थे, इन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स ही नहीं लगाए। जब इनिशियली इनको पता चला फॉर्जरी चल रही है तो कुछ कैपिटल पनिशमेंट दे देते, और साथ साथ सब्जेक्ट जो है वो हाईली इररिस्पॉन्सिबल थी, वो बिल्कुल नहीं देख रही थी कि स्टेट वो बस अपना देख रहे थे सबके सब, लाइक है ना, अपना काम बन जाए बस।
In addition to the well-known causes such as forgery by people, the absence of any elaborate machinery to prepare standard coins, Sultan's failure to monopolize the mint or to stop the forgery by devising special methods for the detection of forged coins, and the corruption of state officials who were most probably in the league with the malcontents, some other important factors are also responsible for the failure of the measure. Token currency for its success requires the permanent credit of the government. In medieval India, the Muslim dynasties were always changing. The people could not hope that successors of Muhammad bin Tughlaq or subsequent rulers of the dynasties would ever expect these token coins as legal tender. तो इन सारी चीज़ों के बदले भी जो हमने रीजंस पढ़े उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि टोकन करेंसी के फेलियर का कारण बनी। मेडिवल इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टीज़ हमेशा चेंज हो रही थी, रूलर बदल रहे थे, तो लोग ये उम्मीद नहीं रख सकते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो आएगा वो टोकन करेंसी को लॉफुल मानेगा, लीगल मानेगा। Secondly, there was already an abundance of fractional currency of copper, jitters, etc. People accepted it because its exchange value was not very high. The token currency was, however, to be treated at par with silver currency. Illiterate and unimaginative masses could not understand the difference between two and were simply confused. They thought that the Sultan intended to rob them. तो दूसरी बात क्या है कि पहले भी टोकन करेंसी यूज़ कॉपर के जीतल्स यूज़ हो रहे थे, कॉपर जीतल्स दीज वर यूज, और लोग उसको नॉर्मल एक्सचेंज में तो यूज़ करते थे जो वेरी हाई एक्सचेंजेस नहीं होते थे। जब टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ और सुल्तान ने कहा कि सिल्वर के बदले हम इसको यूज़ करेंगे, तो इलिटरेट और अनइमेजिनेटिव लोगों को क्या लगा कि सुल्तान जो है वो उनको लूटना चाह रहे हैं। तीसरी बात क्या है, देयर बीइंग नो अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट विथ फॉरेन गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ टोकन करेंसी, फॉरेन मर्चेंट्स वेयर इन द राइट व्हेन दे refused to accept bronze coins in the business transaction. No other state, whether in India or abroad, would have shown consideration for token currency of Muhammad bin Tughlaq in those days. तो क्या हुआ, तीसरा कारण क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ कि इंडिया में तो हमारा टोकन करेंसी ही यूज़ होगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल्सो। तो फॉरेनर आते थे, अपना तो टोकन करेंसी में ख़रीद लेते थे, और इंडियंस को जो भी बेचते थे या इंडियंस को जब पेमेंट करना होता था, इंडियंस जब फॉरेनर्स को पेमेंट करते थे तो वो लोग तो रिफ्यूज़ कर देते थे कि टोकन करेंसी नहीं चाहिए। तो कोई भी और राजा मान ही नहीं रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्राइस ऑफ मेटल डिपेंडेड ऑन लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड कुड नॉट बी फिक्स्ड बाय रॉयल इनैक्टमेंट. द सुल्तान रोज डिसकंटेंट बाय डिसरिगार्डिंग दिस लॉ इन रेजिंग द प्राइस ऑफ सिल्वर ऑन हिज ओन स्वीट विल. Muhammad bin Tughlaq's measure of token currency was much in advance of the age. Under the circumstances, it was bound to fail, and it is not surprising that it failed miserably. तो क्या कहा जाता है, आखिरी बात क्या है कि प्राइस जो है मेटल का वो लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है, और बिल्कुल वो रॉयल इनैक्टमेंट से फिक्स नहीं किया जा सकता। आप लॉ और सप्लाई नहीं डिसाइड कर सकते, लॉ और सप्लाई डिसाइड करता है प्राइस को। आज कैपिटल मार्केट्स में लॉ एंड सप्लाई डिसाइड्स प्राइस, और सोशलिस्ट मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन भी करती है। पर सुल्तान जो है वो बस अपनी मर्ज़ी से अकेले जो है ये सब डिसाइड करना चाह रहे थे, और ये बात तो बहुत ही एडवांस है उनके समय से। सोशलिज़म का प्रिंसिपल कितने बाद में आया, और ये इनके समय से तो काफ़ी एडवांस बात हो गई ना। ये तो सोशलिज़म की बात हो गई कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है मार्केट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये एक्सपेरिमेंट तो फेल होना ही था, और ये फेल भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ खुरासन एक्सपीडिशन. आई थिंक वी कैन डू इट इन दिस वीडियो itself. So, Muhammad bin Tughlaq was not content with his vast Indian possessions like Alauddin Khalji. He had the vision of universal conquest, and Barnian Firishta tells us that soon after the retreat of Tarmasharin, the Mongol chief of Transoxiana, the Sultan began to dream of extending his empire by the conquest of foreign countries. Khurasan was the first to catch his fancy. A brief explanatory reference to the political background of his proposed Khurasan expedition is deemed necessary. The country Khurasan, तो अभी पहले हम लोग
थोड़ा सा जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह खुश नहीं थे पूरे इंडियन पोजीशन से, वो और ज़्यादा दूर फैलना चाहते थे। और जब तमशरीन खान को जो उन्होंने हरा दिया, जो कि मंगोल थे, ट्रांसऑक्सियाना से आए थे, चगताई मंगोल, तो उनको जब हरा दिया ना, तो इनको क्या लगा कि इनको हरा दिया तो फिर अब जो है हम जो है आगे भी कैप्चर कर सकते हैं। तो वो जो है वो सबसे पहले सोचा उन्होंने कि खुरासन पे ट्राई किया जाए। खुरासन के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। द कंट्री ऑफ खुरासन फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर ऑफ द इलखान मंगोल्स। खुरासन पे भी मंगोलों का राज था। कौन से मंगोल? इलखान मंगोल्स। खुरासन कहाँ था? पर्शिया का एक पार्ट था। Abu Said, then Mongol emperor of Persia, being minor, his empire was coveted by Tarmashrin, the Chagtai chief of Transaxiana. Tarmashrin, having suffered an unexpected defeats at the hand of Persian armies near Ghazni, was compelled to cross Indian border in 1326 with 40,000 soldiers. तो क्या हो गया कि जो खुरासन था वहाँ पर एक माइनर रूल कर रहे थे अबू सैद, ठीक है, वो एक माइनर थे और उनके एम्पायर को जो है तरमशरीन ने जो है, जो कि चगताई चीफ थे ट्रांसऑक्सियाना के, उन्होंने जो है क्या किया हुआ था, उन्होंने कैप्चर उन्होंने भी नज़र लगाई हुई थी। तरमशरीन जो है वो जो है उनको अनएक्सपेक्टेड डिफीट मिल गई पर्शियन आर्मी से गजनी में। वो उन्होंने सोचा कि ये तो माइनर है तो यहाँ पर किया जा सकता है, बट वो तो हार गए और इसलिए वो जो है वो इंडिया में आए 1326 में 40,000 सोल्जर्स के साथ। जैसा कि पहले भी मेंशन्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट्स किया था अपनी डोमिनेंस को तरमशरीन से बचाने के लिए, और फिर एक हेस्टी रिट्रीट किया, तरमशरीन को हरा दिया और अफ़गानिस्तान की तरफ एक तरमशरीन ने एक हेस्टी रिट्रीट किया। लेकिन रिटर्न से पहले माना जाता है कि तरमशरीन जो है उन्होंने जो है एक फ्रेंडली अलायंस किया मोहम्मद बिन तुगलक के साथ और कहा कि हम दोनों मिलकर के खुरासन को कैप्चर करते हैं, क्योंकि खुरासन में जो रूलर हैं वो तो माइनर हैं। और फिर इसके बाद ऐसा अपीयर होता है कि they had also taken the ruler of Egypt into confidence in connection with this campaign, thus leading to the formation of what they call Triple Alliance। और मोहम्मद बिन तुगलक, तरमशरीन और इन्होंने जो है, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने जो है इजिप्ट के भी रूलर को अपने साथ मिला लिया था और एक ट्रिपल अलायंस बना लिया था। ट्रांसऑक्सियाना जब तरमशरीन पहुँचे तो उन्होंने जो है अपने जवाई अमीर नौरोज़ को जो है बहुत सारे मंगोल चीफ के साथ जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में भी भेजा और फिर इन्होंने जो है दे जॉइंड हिज आर्मी एंड अमीर नौरोज़ रिमेन्ड इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान अंटिल द लैटर्स डेथ इन 1351। और जो है क्या हो गया कि अमीर नौरोज़ और जो तरमशरीन के जो भी लोग थे, जो आर्मी थी, वो मंगोल के जो चीफ्स थे, उन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी को ज्वाइन कर लिया और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है अमीर नौरोज़ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के मरते दम तक उनको सर्व करते रहे। बर्नी लिखते हैं कि ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ दीज फॉरेनर्स सुल्तान प्रिपेयर्ड अ वाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्करिंग खुरासन इन इराक। और इन्होंने जो है वो सुल्तान को बहुत मोटिवेट किया कि खुरासन को कैप्चर कर लीजिए। तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि नहीं, खुरासन को कैप्चर करना चाहिए और इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए, लोगों के ऊपर, आर्मी के ऊपर। बहुत सारे मैन आए अपने अपने प्रपोजल्स को लेकर के और बेवकूफ़ बना रहे थे सुल्तान को कि ऐसे करके आराम से हम लोग थ्रोन हटा सकते हैं, वैसे करके आराम से थ्रोन हटा सकते हैं, और जो है फालतू में सुल्तान से जो है बस पैसे ऐंठ रहे थे। फ्रॉम बर्नीज़ कंप्लेंट वी इन्फर दैट मोहम्मद बिन तुगलक स्पेंट लैविशली अपन द, ये सब बर्नी कहते हैं। तो हम लोग को बर्नी के कंप्लेंट से समझ में आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे थे फॉरेन चीफ्स के ऊपर, इस ऑब्जेक्टिव से कि इन्फॉर्मेशन जो है खुरासन के बारे में या फिर इराक के बारे में इन्फॉर्मेशंस मिले। अफ़गानिस्तान वॉज देन अंडर द कंट्रोल ऑफ तरमशरीन and Muhammad bin Tughlaq plan seemed to establish some sort of joint sphere of influence in the Muslim world.
तो मोहम्मद बिन तुगलक कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे कि तर्मश्रीन के साथ मिल करके कुछ इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करें मुस्लिम वर्ल्ड में। ऐसा माना जाता है कि तर्मश्रीन ओपनड गजनी टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशंस विद मोहम्मद बिन तुगलक। गजनी thus became a diplomatic center and came within the political influence of Sultan, who frequently sent money to its government and almost took the Qazi of Ghazna into his pay, a fact which Barni repeatedly deplores। तो क्या हो गया कि तर्मश्रीन ने जो है गज़नी के गेट्स खोल दिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनका जो है डिप्लोमेटिक सेंटर बन गया गज़नी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने गज़नी में भी जो है लगातार पैसे भेजे वहाँ के गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात जो है ये बार बार बरनी बताते हैं। इब्न बतूता ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन द कोर्ट ऑफ तर्मश्रीन एट बुखारा tells us that Muhammad bin Tughlaq was extremely kind to Tarmashrin and that brotherly relations existed between the two. Tarmashrin was not an infidel like his predecessors. He had adopted Sunni form of Islam as the state religion of Transoxiana. This was perhaps an additional reason for the close intimacy between Tarmashrin and Muhammad bin Tughlaq. तो इब्न बतूता जो है वो तर्मश्रीन के भी कोर्ट में भी रहे। वो बहुत सारे वो पूरे दुनिया घूम रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इनिशियल वीडियोस में हमारे। तो इब्न बतूता जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है तर्मश्रीन के साथ बताया कि तर्मश्रीन और मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत ही भाई भाई जैसा रिश्ता था। और तर्मश्रीन जो है उन्होंने खुद को वो अब जो है बुद्धिस्ट नहीं रहे, और उन्होंने जो है खुद के स्टेट रिलीजन को सुन्नी मुसलमान जो है अपना स्टेट रिलीजन बना लिया था, सुन्नी इस्लाम को। तो इस वजह से जो है दोनों की दोस्ती और बढ़ गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक और तर्मश्रीन की। बर्नी कहते हैं कि सुल्तान मेड अ स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफ 3,70,000 आर्म्ड पर्सनल फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ खुरासन एंड इराक। दिस न्यू फोर्स नोन एज द खुरासन आर्मी was obviously over and above the regular imperial army of the Delhi and contingents of the provincial governors. It included a large number of Rajput and Hindus of the Doab as well as Mongol mercenary troops. As the entire force had been raised within a year, the terms of recruitment must have been very liberal and attractive. The incident took place somewhere in 1333-34 before the death of Abu Sa'id, the minor ruler of Persia. He expired in 1335. तो क्या हुआ 1333-34 के बीच में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की एक अलग खुरासन आर्मी तैयार की थी, जो इंपीरियल या प्रोविंशियल आर्मी से हट कर थी। और इस आर्मी में राजपूत, हिंदू और बहुत कोई, और बस एक ही साल में ये आर्मी तैयार कर ली गई। मतलब जो है बड़े आराम से लोगों को रिक्रूट कर लिया गया, और लिबरल और अट्रैक्टिव जो है उनको कहा गया होगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव रीजंस दिए गए होंगे जो इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और वो भी बस एक साल में। As luck would have it, Khurasan expedition did not materialize and the army could not be put to use. Its maintenance and equipment caused a heavy drainage of wealth. In the words of Barni, for a whole year these soldiers were supported and paid, but as they were not employed in war and conquest, when the next year came round, there was not sufficient money in treasury to support them. तो क्या हो गया, बर्नी कहते हैं कि पूरे साल भर इस आर्मी को खिलाया पिलाया गया, तैयार रखा गया, पे किया गया, पर कभी वॉर हुआ ही नहीं, क्योंकि अबू साइद जो कि पर्शिया के माइनर रूलर थे वो तो मर गए 1335 में। इस वजह से, और ये आर्मी को इतने पैसे मिल गए, और फिर फाइनली आर्मी अटैक क्या करती, एक पूरे साल इतने पैसे और इतने खर्चे हो गए आर्मी पर कि अगले साल जो है इनको मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं था। Barni, however, gives no reason why Khurasan expedition was not undertaken. It was probably because of the sudden and unexpected changes that came about in the diplomatic and political relations of Persia, Egypt and Transoxiana. These were the restorations of friendly relation between the court of Persia and Sultan and Nasir of Egypt, the deposition of Tashmarin by one of his cousins. Triple alliance was thus broken. Unaided, Muhammad bin Tughlaq was constrained to call off the expedition. ये एक्सपीडिशन क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बर्नी बताते नहीं है, बट प्रोबेबल रीज़न माना जाता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बदल गया वहाँ का। एक तो पहले अबू साइद भी मर गए 1335 में, इसके साथ साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस शुरू हो गया पर्शिया और सुल्तान के बीच में।
मतलब और नासिर ऑफ इजिप्ट के बीच में। तशमरीन जो कि एक्चुअली में बहुत ही मतलब वन ऑफ द मेन पर्सन थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था, उनको जो है उनके एक कज़न ने मार दिया। तो तरमशरीन जब नहीं रहे तो ट्रिपल अलायंस भी टूट गया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने सपोर्ट ना किया, ना इजिप्ट ने ना तरमशरीन ने, तो ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एक्सपीडिशन को एंड करना पड़ा। The two earlier projects could be justified to some extent on rational ground, but not so the crazy plan for the conquest of Khurasan. इससे पहले जो दो प्रोजेक्ट हुए शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक था, या फिर जो टोकन करेंसी वाला पार्ट था उसके पीछे भी लॉजिक था, बट खुरासन एकदम इलॉजिकल स्टेप था। ऐसा एक्सपेडिशन का चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम था। True that the political instability of Khurasan on account of unpopular Persian rule and minority of the Persian monarch, but how did Muhammad bin Tughlaq plan to establish his hold there by jumping over Afghanistan, which did not constitute a part of his domains? It is strange that Sultan took up such an ill-conceived project at the bidding of a handful of self-seeking foreign nobles who apparently served as a liaison between Delhi and courts of Transoxiana and Egypt. तो क्या हुआ, ये बहुत ही इलॉजिकल स्टेप था। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगना भी बहुत बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इराक़ और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में अफ़गानिस्तान आता था, जो कि उनके किंगडम का हिस्सा ही नहीं था। और कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो कन्विंस कर रहे थे, और उनसे जो है राजा सुल्तान जो है वो कन्विंस हो गए। इन प्लानिंग दिस एक्सपेडिशन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वेर टोटली इग्नोर्ड। पूरा जियोपॉलिटिकल फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि एक बड़ी सी ह्यूज आर्मी को हिंदू कुश से आप जो है लेकर के एक पूरी अफ़गानिस्तान को क्रॉस करवाते हुए, एकदम डिफ़िकल्ट लैंडस्केप से गुजारते हुए, जो है गलत क्लाइमेट में गुजारते हुए आप जो है इराक़ ले जाओ, पर्सिया ले जाओ। Only redeeming feature about Muhammad bin Tughlaq is that he abandoned the project before actually dragging the army through the Khyber Pass to veritable disaster. To that extent, we must give him credit for having shown some wisdom in the long run. Out of the Khurasan army, about 100,000 of the soldiers were employed in Karachil expedition, while the rest were disbanded. To the soldiers, being suddenly thrown out of employment took up to plunder, robbery and proved a great nuisance to the government as well as the public. तो क्या हुआ, बस एक ही चीज़ की सराहना की जाएगी इस मिशन में मोहम्मद बिन तुगलक के, कि उन्होंने ये मिशन को रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, बिना सोल्जर को ले गए खैबर पास से, ये नहीं कि गुजारते हुए फाइनली फिर वहाँ जा कर के कहते कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, तो उससे पहले ही मना कर दिया। ये एक अच्छी बात थी। अब जो ये 3,70,000 की जो आर्मी इन्होंने तैयार की थी, इसमें 1,00,000 आर्मी को इन्होंने रख लिया कराचिल एक्सपीडिशन के लिए, और बाकी को हटा दिया। बाकी जो हट गए ये तो ट्रेंड थे, तो ये बाद में क्या हो गया, ये रॉबरर बन गए और लूट खसोट मचाना इन्होंने स्टार्ट किया, और गवर्नमेंट और साथ साथ पब्लिक दोनों को बहुत परेशान किया बाद में इस आर्मी ने। अब हम लोग देखते हैं कराचिल एक्सपीडिशन। According to Barni, the Karachil expedition of Muhammad bin Tughlaq was a part of Project Khurasan expedition. After the failure of his scheme for conquest of Khurasan, the Sultan utilized a part of Khurasan army for this purpose. Firishta, who himself did not know the exact nature of expedition, writes that it was directed against China. Some of the modern writers have blindly followed Firishta's account. Barni states that the Sultan's object was to conquer the mountains of Karajal or Karachal, which was situated between the territories of Hind and those of China, so that the passage for horses and soldiers and the march for army might be rendered easy. His statement implies that the expedition was directed against Himachal or Himalayas. Some of the modern writers have wrongly criticized Barni and for having made this statement, which had nothing to do with securing a passage for Khurasan expedition. It has however been correctly suggested that the Karachal contemporary writers probably meant Kurmachil, the old name of Kumaon. Thus, the imperial army was sent against some independent Rajput states in Kumaon Garhwal region. These hilly tracts usually served as
a place for refugee of the rebels against the government of Delhi. That is why Muhammad bin Tughlaq wanted to bring them under his direct control. तो क्या कहा जाता है, बर्नी कहते हैं कि कराची एक्सपीडिशन जो है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो खुरासन एक्सपीडिशन का पार्ट था। फिरिश्ता कहते हैं कि ये जो है खुरासन एक्सपीडिशन जो है वो चाइना पर अटैक करने के लिए था। बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस फिरिश्ता को जो है वो अंधों की तरफ फॉलो कर देते हैं। बर्नी कहते हैं कि सुल्तान एक्चुअली में माउंटेन कराजल या फिर कराचल माउंटेन को कैप्चर करना चाहते थे, जो हिंद और चाइना के बीच में था, ताकि हॉर्सेस को और बाकी चीज़ों को ईजी पैसेज मिले। लेकिन लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इतिहासकार बर्नी को कि इससे कोई लेना देना ही नहीं है दोनों फैक्ट का, कि हॉर्सेस का क्रॉस करना और चाइना और हिंद के बीच का माउंटेन को कैप्चर करना। लेकिन शायद बर्नी सही कहते हैं, ये शायद जो है करेक्टली सजेस्ट हुआ है कि कराचल जो है वो मे बी कुरमाचिल को सजेस्ट कर रहा है। कुरमाचिल जो है वो कुमाऊँ हिल्स का पुराना नाम है, और कुमाऊँ गढ़वाल रीजन में राजपूत स्टेट्स रूल किया करते थे, और जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से कोई रिबेल, कोई बगावती कर जाता था तो वो यहाँ आकर छुप जाता था। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि वो इन एरियाज़ पर खुद कंट्रोल कर लें, ताकि इन सारे एलिमेंट्स को जो है इनकी वो खबर ले सकें। खुसरो मलिक, a nephew of Sultan Muhammad bin Tughlaq, commander-in-chief of the Karachal army, after a careful analysis of the situation, Sultan instructed him to establish military posts at intervals along the route through the mountains between the position to be stormed and the base of the plains. तो खुसरो मलिक जो है कि जो सुल्तान के जो हैं भतीजे हुआ करते थे, उसको कराचल आर्मी का जो है कमांडर इन चीफ बनाया गया, और सुल्तान ने केयरफुली पढ़ा कि क्या करना है क्या नहीं, और फिर उसको सजेशंस दिया कि कहाँ पे मिलिट्री पोस्ट बनाओ नहीं बनाओ। और मिलिट्री पोस्ट जो है वो दो पर्पस को सर्व करने वाले थे, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोविजंस एंड सर्विंग एज प्लेसेस ऑफ रेफ्यूजी इन केस ऑफ रिट्रीट और डिसऑर्डर। तो दो काम करने वाले थे ये, एक तो ये फैसिलिटेट करने वाले थे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोविजन, मतलब प्रोविज़न देने वाले थे, और साथ साथ किसी को अगर रिट्रीट करना है आर्मी को या फिर डिसऑर्डर हो गया तो वापस आना है, तो ये मिलिट्री पोस्ट में आर्मी रेस्ट भी कर सकती थी। सो लॉन्ग एज दीज इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुल्तान्स वेर एक्टेड ऑन, खुसरो मलिक मेट विद सक्सेस। जब तक उन्होंने सुल्तान के बात को माना, खुसरो मलिक को सक्सेस मिला। रॉयल ट्रूप्स कैप्चर्ड जिदिया एंड द सराउंडिंग कंट्री एट द फुटहोल्ड ऑफ हिमालय। हिमालय के अगल बगल के एरिया को, जिदिया को कैप्चर किया गया। फिर इन्होंने लैंड को सीज़ किया, ट्रेजर्स को जो है होस्टाइल चिफ्टन्स से लिया, और फिर होस्टाइल चिफ्टन्स जो है क्लाइम्ड अप द हाइट्स एंड कैप्चर्ड वारंगल। खुसरो मलिक sent a written intimation of his victories to Sultan, who dispatched a Qazi and Khatib to take charge of the civil administration and newly acquired territories. खुसरो मलिक ने जब बताया सुल्तान को कि ये जगह हमने सक्सेसफुल कर लिया, हटा दिया, इतने फुटहिल्स को कैप्चर कर लिया, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी और खातिब को जो है चार्ज लेने के लिए भेज दिया, नए जगह का सिविल चार्ज। ऐसा लगता है कि इनिशियल सक्सेस टर्न्ड खुसरो मलिक्स हेड एंड ही ट्रांसग्रेस्ड द सुल्तान्स ऑर्डर। Flushed with victory, he took the whole army across the mountain into Tibet, where it was overtaken by icy cold winds and rain, followed by outbreak of plague. A panic seized the army and the tables were turned. बट ऐसा प्रतीत होता है कि खुसरो मलिक को जब इनिशियल सक्सेस मिली वो पागल हो गए, और वो जो है उन्होंने क्या किया कि सुल्तान के ऑर्डर को नहीं माने, और वो जो है अब उन्होंने सोचा कि पूरा का पूरा तिब्बत ही कैप्चर कर लेते हैं, और तिब्बत की तरफ आर्मी को ले गए। आर्मी में जो है प्लेग फैल गया, और साथ ही साथ जो है इतना कोल्ड वेदर को तो मतलब अकस्टम्ड ही नहीं थी आर्मी। माउंटेनियर्स हैविंग गॉट द अपर हैंड, और माउंटेनियर्स को तो आदत थी ऐसे वेदर्स की, तो उनको जो है एक फ़ायदा मिल गया। और फिर मिलिट्री पोस्ट वगैरह सबको जो है ये लोग जो है ट्रूप्स को जो है वैली की तरफ भगाते गए। मिलिट्री पोस्ट जो कि इस्टेब्लिश था सेफगार्ड के लिए, वो भी डिसऑर्डर्ड हो गया, और एज अ रिज़ल्ट क्या हो गया, आर्मी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और बस कुछ लोग बच पाए। 3 अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता एंड 10 एज पर नरेटिव ऑफ बर्नी। बर्नी कहते हैं कि 10 लोग बच के लौटे, और इब्न बतूता कहते हैं कि बस 3 लोग लौटे। और इन लोगों ने जो है सुल्तान को जो है माइजरी बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। हु इमीडिएटली गॉट देम हैंग्ड फॉर रीजन्स बेटर नोन टू हिम। तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया ये सुन करके कि इनके बात को नहीं माना गया और ये सब गड़बड़ हुआ। सुल्तान ने जो है इनको भी जो है फांसी पर चढ़ा दिया।
Karachal army perished, albeit the Sultan achieved the political objective which had necessitated this expedition. Ibn Battuta makes a significant statement in this conclusion. After this, Sultan made peace with the inhabitants of hills on condition that they should pay him a certain amount. Since the people held possessions of their territory lying at the foot of the hills, they were unable to use it without his permission. तो क्या होता है, कराचल एक्सपीडिशन से बस एक अच्छी बात हुई कि सुल्तान जो है उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया कि नहीं भाई, इधर जाना बेवकूफ़ी होगी। और इसके बाद जो है सुल्तान ने क्या किया, उन्होंने जो है लोगों के साथ शांति बना ली और उनके साथ जो है एक अग्रीमेंट साइन किया कि आप मुझे जो है ट्रिब्यूट पे करो और मैं आप पर अटैक नहीं करूँगा। हिंदू रूलर ऑफ नागरकोट वॉज ऑल्सो सब्जुगेटेड अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर। 2 साल के बाद हिंदू रूलर जो नागरकोट के थे उनको भी अपने अंदर ले लिया। Though plundered by Mahmud of Ghazni, Nagarkot was never constituted a part of Sultanate of Delhi before. और मोहम्मद बिन तुगलक से पहले नागरकोट जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं था। हाँ, महमूद ऑफ गजनी ने ज़रूर इसको लूटा ज़रूर था। इसके बाद जो है देर इज़ दिस लास्ट पार्ट ऑफ हिज थिंग, दैट इज़ द टैक्सेशन ऑफ द दोआब. I think that we will do in the next video. Thank you so much for watching. Thank you.